First time voters? No, I don't have a voter ID. You don't have a voter ID. Yeah. You're interesting. Yes. Why don't you have a voter ID? मिनट हम वुमेन पर्सन है, हमारे साथ पता है हमें बसों में किस तरीके से प्रॉब्लम है। आप लोगों के साथ नहीं हो रही ये प्रॉब्लम तो आप नहीं समझेंगे। आपको एक बात बता दूं, और मोदी जी कैसे हैं? मोदी जी तो एक नंबर के हैं, मंदिर बनवा दिया। अच्छा, so what about गुजरात? सॉरी, हमारे देश के अंदर अभी आरबीआई के अंदर गेम क्या चल रहा था, जो डिमोनेटाइजेशन किया गया था आरबीआई का, पाकिस्तान के आईएसआई के साथ क्या कनेक्शन चल रहा था? आरबीआई का पाकिस्तान के आईएसआई के साथ कनेक्शन था। हाँ, वोट हमारे, सच बोल रहा हूँ मैं। आंखें खोलिए, सच्चाई देखिए। मैं ये सच्चाई पूछना चाह रहा हूँ जी। कि लास्ट 10 साल में रोजगार है नहीं है? बिल्कुल नहीं मिला। India is already voting and Delhi is about to vote. But what the people of India is actually thinking? Well, let's find out at the Cosmopolitan Center of Delhi, Connaught Place. First time voter? No. Okay. So you have voted. You're seasoned now. Whom will you vote? Why will you vote? Or will you vote? They should vote for. I think we have not decided, but for like I want to vote on who will give us better education, more institutions, good hospitals. the majority of my, like I am not from Delhi and मेरा voter ID is from Jharkhand, should be made in Jharkhand, and I've not been there for a very long time. opinion and vote will go to BJP. Okay. And they should also be voting for. Safety, yes, and the less service as well. Okay. On caste lines? No comments on caste lines. And what else did you ask? On religious lines? No comments on religious lines. We don't go there because everyone have rights to eat whatever they want. And whatever they want to follow, the religion. Religions also. We say a lot, we are a secular country and all of that, but the ground report is totally different. I don't think that's a very good idea to. I mean, I'm not understanding what exactly the governments are doing, but that's not a very good idea if we are. As an architect, we also don't follow that things. We are open to all because we have to design a mosque. We have to design a temple also. On the basis of religion, we are voting, or maybe the governments also are asking us that like the thing. So that's not a very good idea for the governments. What do you think? Yes. So पहले जो मुस्लिम लोग आए उन्होंने बर्बाद किया, उसके बाद क्रिश्चियन लोग आए उन्होंने बर्बाद किया, तो वो 5 महीने में या 10 महीने में या 1 साल में 10 साल में तो ठीक नहीं होने वाला ना। I'm totally against it, and because the fabric of India, which we had already from earlier onwards, it was actually it's very diverse. Okay, and if a party is actually asking votes on the basis of religion, they are actually surely looking for a particular majority of religion. Absolutely. And they surely think that they can actually get the votes of those people. We should not do any politics based on religion, caste, and food. Acha, last 10 years, what's good, what's bad, what needs to be changed, what needs to stay the same? Stay the same. I don't know what, but I think the institutions, the educational institutions have been changed a lot, and earlier. For the better? No. I was 14 when the last 10 years we're speaking about, so yeah, I don't know much, but I think I have no clue. Last 10 years, society has been divided into a deep pit. What has changed in the last 10 years? Change. बेरोजगार तो वैसे ही बेरोजगारी है और फिर महंगाई। इंदिरा ने कहा था मैं गरीबी हटाऊंगी, उसने गरीबी हटा डाले। हाँ ठीक है। महंगाई दोनों की मार है। What do you call it? Facilities, nice facilities we are getting. Infrastructure is getting boom. Kejriwal, CM sir, has been our CM for past 2 or 3 times. Every time the vote has been done, and we have seen the changes, but not as much changes that we can see. And the policies that are implemented are kind of biased. अगर कोई लीडर फैसले लेता तो हम ये अज्यूम नहीं कर सकते कि 100% उसके सारे फैसले सही होंगे। हमें उसके पूरे सही था गलत था। ज़्यादातर कुछ चीज़ें उससे अच्छी भी हुई, पर ज़्यादातर चीज़ें जो देश में देखने को मिली जीडीपी पे वो बुरी हुई। But for Lok Sabha, you'll be voting for BJP. Yes. But that doesn't change the fact that Kejriwal is your CM. Okay. Okay. Education. Yes,
definitely. Like, I would still say a lot of people in India are uneducated and they don't have the right resources. I think absolutely falter. Why? Because on ground, what I have seen, like when I was studying in DU, I could see a lot of problems in the infrastructure and the way we were studying. And I don't know earlier how was it, but during my UG it was a little better. जिस एजुकेशन सिस्टम को ब्रूटली बर्बाद किया गया, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था, अब आप खुद ही सोचें ना, जिस एजुकेशन सिस्टम को कम से कम 100, 200, 300 साल या 700 साल उसको बर्बाद किया गया है। 700 साल से बर्बाद किया। हाँ, ये बात आप भी जानते हैं। नहीं, आप भी जानते हैं ये बात। अभी का देख के चलना चाहिए, पहले क्या हुआ हमें उससे निर्भर नहीं करता, हम अभी का देख के चलेंगे। 10 साल में रोजगार है नहीं है, देश में नौकरी नहीं है, लोग कह रहे हैं, तो फिर उसके बारे में क्या सोचा आपने? बेरोजगारी तो बहुत है, फिर भी आप बेरोजगारी है 10 साल मोदी सरकार के, उसके बाद भी बेरोजगारी है। वैसे बहुत हुआ है। हाँ, मोदी सरकार की वजह से बेरोजगारी है? नहीं, मोदी सरकार बेरोजगारी खत्म हो जाएगी अब। वोट हमारे, सच बोल रहा हूँ मैं। आंखें खोलिए, सच्चाई देखिए। मैं ये सच्चाई पूछना चाह रहा हूँ कि लास्ट 10 साल में रोजगार है नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं मिला। बीजेपी सरकार आने के बाद उनको नौकरी मिल जाएगी उनकी, पक्का है? हाँ जी। तो बीजेपी सरकार तो लेकिन अभी 10 साल से है, फिर भी तो नौकरी नहीं मिली, फिर भी तो निकल गए वो जी। जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये हमें पहले सोचना होगा हमारी एजुकेशन सिस्टम कैसी है। आज़ादी के बाद जब हमारे एजुकेशन के बारे में सोचा गया, तो आज़ादी के बाद जो भी सरकारें बनी, चाहे वो नेहरू जी की हो, चाहे वो इंदिरा जी की हो, उन्होंने स्किलफुल एजुकेशन के लिए कुछ भी नहीं किया है। नौकरी नहीं है, लोग कह रहे हैं, क्या मतलब है? तो अभी लोगों के पास नहीं है तो हम क्या करें? ना है तो ना है, हम तो पढ़ते हैं, हम तो स्टूडेंट हैं। फिर क्या हुआ? ये दोबारा लग जाएगी अब सबके। देखो जो निकले हैं वो और आएंगे, साथ में 2 लाख भाई और आएंगे सिविल डिफेंस में। हाँ जी। जॉब्स In what sense? बात है ना, सबसे बड़ा मुद्दा है आज की दुनिया में रोजगार। तो रोजगार है नहीं है? वो रोजगार तो अब कहाँ है? Yeah, there should be more creation of jobs, more opportunities made for people, especially after COVID. There has been a huge gap between the number of people who are employed and who are looking for jobs. So I feel like that still needs to be repaired. नहीं, अब अरविंद केजरीवाल जी की सभा में किसी में चले जाइए, वो किसी रोजगार की बात नहीं कर रहे। महिला की सुरक्षा की बात करते हैं। निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद महिला सुरक्षा लगाई गई थी। तो रोजगार तो सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे भारत में नहीं है, आप लोग कह रहे हैं। आपको क्या उसके बारे में ख्याल है? उसी के लिए तो हम कह रहे हैं, क्योंकि जो सरकार है, कोई भी सरकार हो, रोजगार के ऊपर काम करे। हम कहना चाहते हैं कि हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए। सर बेरोजगारी तो है, देखिए बेरोजगारी है। इसके बारे में आपको क्या सोचते हैं? तो सर हम यही चाहते हैं ना कि अगर ये आए तो हमें लगता है ऐसा है कि कुछ ये करेंगे हमारे लिए। मतलब रोज आप हुआ नहीं है, आप कह रहे हैं 10 साल में भी देखिए सर हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं हुआ, कुछ हुआ है। About jobs, it's your capability. When you learn something, you have to struggle. You will get a job somewhere. Like you will have a talent in yourself. You just have to find that talent and show that talent to everyone. That's my concept. देखो, काम की जो स्थिति है वो सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, वो पूरी दुनिया में ही खराब है। अगर पूरी दुनिया में स्थिति खराब है, अगर उससे हम अपनी स्थिति को कंपेयर करते हैं, तो हमारी जीडीपी बहुत अच्छी ग्रो कर रही है। हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है या फिर महंगाई की जो दर है, महंगाई की दर भी काफ़ी कम है, बाकी दुनिया से अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी काफ़ी कम है। और बहुत लोग हुआ है, मतलब आप सपोर्टर है बीजेपी जी, बताइए कि क्या क्या काम हुआ है? देखिए सर, हमारे देश की जीडीपी पहले से तो काफ़ी ऊपर हुई है। बाकी मोदी जी ने हमारे देश को कहाँ से कहाँ पहुँचाया है, वो भी आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। वही मैं पूछ रहा हूँ, मतलब कहाँ तक पहुँचा है? कहाँ तक पहुँचाया है सर, देखिए। तो मैं ये मानता हूँ अच्छा हुआ है, हमारे यहाँ सैमसंग आया, हमारे पास आईफोन बन रहे हैं, हमारे पास इतनी सारी फैक्ट्रीज आई हैं। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की बात करो तो मैं ये चाहता हूँ गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरियाँ कम हुई है, ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ। सोलर पावर में जो है हमारा देश नंबर 1 या 2 पे आ गया है। सोलर पावर में अच्छा, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मुझे नहीं पता, लेकिन मतलब काफ़ी, लेकिन मोदी जी ने पहुँचाया है। और जैसे जैसे देश प्रोग्रेस करेगा उसमें कम होनी भी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर आगे आएगा, प्राइवेट सेक्टर ही जब योगदान देगा तभी देश आगे बढ़ेगा। सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर अगर हम ओवर रिलाइड करेंगे तो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, जो कि पिछले कई सालों से नहीं बढ़ा। हाँ, महंगाई थोड़ी सी बढ़ रही है, पर लेकिन सिर्फ एक, आप कह रहे हो कि जीडीपी अच्छा हुआ है? हाँ, जीडीपी अच्छा हुआ है ना। मैंने क्या बोला, सिर्फ एक मुद्दे को देखकर आप ये फैसला नहीं लोगे ना कि सब कुछ बुरा हुआ है। जीडीपी अच्छा है इसलिए आप ग्रोथ रेट निकाल लो। हमारी 1.8 ट्रिलियन की जीडीपी थी, आज 4.2 ट्रिलियन हो गई, 2.5 गुना हो चुकी है। पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है। मतलब है थोड़ी बढ़ रही है, कुछ चीज़ों की रेट बढ़ रहे हैं। अब
कि जो हमारी जो गरीब जनता है यानी कि जो पुअर क्लास है वो बहुत जल्दी गरीबी से बाहर निकल रही है। अच्छा। अभी जो फिर 80 करोड़ को राशन की क्या जरूरत पड़ रही है? तो मतलब जैसे कमाई बढ़ी है वैसे महंगाई बढ़ी है, तो हम इसको पेट्रोल के जो प्राइस है वो भी तो बढ़ गया है, उसके बारे में क्या ख्याल है? पेट्रोल सर देखिए हर चीज़ उसी हिसाब से बढ़ रही है, ठीक है ना। राशन की ज़रूरत ये पड़ रही है क्योंकि पहले क्या हमारे यहाँ पर ये सब सुविधाएं नहीं हो रही थी क्या? पहले हमारे पास क्या फ्री अस्पताल नहीं थे, फ्री अगर आज अगर कोई चीज़ फ्री, अलग बात है। आज अगर कोई फ्री राशन अगर गरीबी से बाहर निकल रहा है देश, तो 80 करोड़ को राशन की क्या जरूरत है? मोदी जी खुद कह रहे हैं कि 80 करोड़ को मैं राशन दे रहा हूँ। हाँ राशन दे रहे हैं, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ तो क्या पहले हमारे यहाँ फ्री सर्विसेज नहीं थी क्या? आप पहले तो आप कह रहे हो पहले जीडीपी खराब थे, लोग गरीब थे, अभी तो गरीबी से बाहर निकल रहे हैं ना। हाँ। फिर क्या जरूरत है राशन की? तो ये आप डेटा पर आओ ना, अब राशन की जरूरत पे क्यों आ रहे हो? वही तो मैं कह रहा हूँ, डेटा के साथ भी डेटा आप कह रहे हो कि गरीबी से बाहर आ रहा है। जी, गरीबी से बाहर आ रहा है। फिर भी गरीबी से बाहर आते हुए भी 80 करोड़ को राशन की जरूरत है। मैं ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत मोदी जी खुद कह रहे जरूरत है। नहीं है ज़रूरत। मोदी जी का आप इंटरव्यू देखो, किस मोदी जी ने बोला कि ज़रूरत है? ऑन वन साइड 400 पर, ऑन अनदर साइड हाथ बदलेगा हालात। Which one do you think is better? You are in the creative field, you might be knowing. Both, I think it won't be 400 par, but definitely Modi will come as again he will be a prime minister. I think so. Yeah, I'm with him. Yeah, you are with Modi, or you are with him. I know you are with him. And are you with Modi? Yeah. I'll be surely voting for the party which doesn't speak, which actually speaks on developmental affairs rather than based on the divide and politics rule. Because we have seen words on the idea of divide and politics rule when British was actually ruling over us. And if we are actually implementing that same rule all over again, and we are actually telling that this is a nationalist idea, we need to think about ourselves. ये जो wealth divide है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है? वेल्थ डिवाइड में बिल्कुल दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत है, हमारी प्रॉब्लम है। तो हमारा जो प्राइवेटाइजेशन आप कह रहे हो, प्राइवेटाइजेशन की मांग है पूरे देश पर में। लेकिन उसके साथ अगर देखो अमीर हो रहा है तो उस पर हमें क्यों दुख होना चाहिए? गरीब भी तो अमीर हो रहा है। मैंने आपको गिनी की भी तो रिपोर्ट बताई, वो तो गरीबों के लिए होती है। रिपोर्ट में भी आपने फिर उसके बाद माना ना कि 80 करोड़ सही में उनको राशन मिल रहा है, और राशन मैं भी ले रहा हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर सरकार देगी तो मैं लूँगा। तानाशाही, dictatorship might come. So what do you have to say about that? See, the possibilities are there. But you're still with him? Yeah, I'm still with him because he have done a lot of things, good things. Okay, but thing is, we don't want 400 plus. Then it will be like a dictatorship, where there will be a monopoly of them. They will take a decision on their own whenever they want. They will take the decision. I want an equal, maybe like participatory democracy. Yeah. So opposition also needs to be like 50% or 48% that much. हमारे देश के अंदर अभी आरबीआई के अंदर गेम क्या चल रहा था? ये जो डिमोनेटाइजेशन किया गया था, आरबीआई का पाकिस्तान के आईएसआई के साथ क्या कनेक्शन चल रहा था? आरबीआई का पाकिस्तान के आईएसआई के साथ कनेक्शन था? हाँ। क्या कनेक्शन? सर्च करो, आप जर्नलिस्ट हो ना? तो इसीलिए डिमोनेटाइजेशन हुआ था। हाँ, सर्च करो। मोदी जी ने फिर आईएसआई के कहने पे डिमोनेटाइजेशन कर दिया था। ये तो आप कह रहे हो। Still the same. It's very difficult to, you can't walk on the roads in the night still, and even in this era, and I think it has been increased in past few years. Okay. Yes. So the safety increased, or the no, not the threat. The unsafe nature of things and the threat has increased. Yes, because like I have noticed this when I used to walk on the roads before, there was less people looking at me with the evil eye, and eve teasing was a little lesser than now. It has increased. That's what I have been experiencing. Club of Tomorrow, what do you think the tomorrow should be for India? Tomorrow should be hopeful, but sadly it's not at the moment, I guess. Future of India should be like, we should be more focused. We should focus more on education and the moral values and everything. And with that, we should have good facilities that we don't have, and job, unemployment. I'm unemployed. Oh my God, you're unemployed. So yes, unemployment, better facilities, and of course, no religion-based politics. That's what India is voting for. And hope India is not voting for that, but we all hope that people should vote for that. You're very sad. Yeah. You have to be upbeat about the it. State of the country India, is sad. we are the youth. We should do something to do the change, right? To bring in the change. Yeah, I mean that's the energy the youth carry, but sadly there are not a lot of youth in the 70% youth in India. Not in India, but in the
political stream and the parties.